Hello students, how are you? I hope you all are fine and studying well. Okay. As you all know, in last lecture, what we did, we discussed solutions of exercise 4.1 and 4.2, and I hope there won't be any doubts regarding those exercises now. ठीक है? अब आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा. तो अब हम आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं? ठीक है? In today's lecture, we will discuss solution of remaining exercises. ठीक है? जो बची हुई एक्सरसाइज है आपके चैप्टर 4 की exercise 4.3 and exercise 4.4 that we will be discussing here. ठीक है? Again, I am discussing only selected problems as these exercises are very simple. I hope after watching this video you will be able to solve the remaining questions also. ठीक है? Thank you. Hello students, how are you? I hope you all are fine. As you all know, in last lecture we discussed solutions of exercise 4.1 and 4.2. ठीक है? So in today's lecture we will discuss solutions of exercise 4.3 and 4.4. So ठीक है? Open your book and see question number 1. Question number 1 क्या कहता है? Draw the graph of each of the following linear equations in two variables. आपको इन चारों पार्ट के क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है? फर्स्ट वन इज x प्लस वाई इक्वल टू 4, सेकेंड इज x माइनस वाई इक्वल टू 2, थर्ड इज y इक्वल टू 3x एंड 4 इज 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई. ओके, तो here again I will be discussing only two parts. Part second and fourth remaining you have to plot on your own. ठीक है? तो सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 2. ठीक है? जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको y कितना मिलेगा? -2. सो 0 कोमा -2 इज अ पॉइंट. x इक्वल टू 0, y इज -2. Similarly, when you put x equal to 1, you will get y equal to -1. So 1 comma -1 is a point. तो ये आपके दो पॉइंट हो गए. एंड वी नो दैट 2 points आर सफिशिएंट टू प्लॉट अ लाइन. कम टू फोर्थ पॉइंट. सिमिलरली फोर्थ इज 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई. जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो दिस विल बिकम 0. सो यू विल गेट y इक्वल टू 3. तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3. ठीक है? when you get x equal to 1, when you put x equal to 1 you will get y equal to 1. ठीक है? because 2 into 1 is 2, so 3 minus 2 will become 1. so when x is equal to 1 you will get y equal to 1. so these are the points. so this one is for second part and this one is for fourth part. now what we'll do, we will plot them one by one. ठीक है? now let us see. This is your graph. ठीक है? So first we have to plot 0 comma -2, 0 comma -2. So 0 comma -2 will be this. ठीक है? This is your 0 comma -2. Now next one is 1 comma -1. So 1 comma -1 will be x is 1, y is -1. So this will 1 comma -1. And now what you have to do, simply you have to join these 2 points. that will be your required graph. ठीक है? so this is how we will join it. so this line corresponds to x minus y equal to 2. ठीक है? so we will write x minus y equal to 2. now fourth one is 3 equal to 2x plus y. when x is equal to 0, y equal to 3. x is equal to 0, y equal to 3. so this is your 0 comma 3. next one is 1 comma 1. 1 comma 1 is x1, y1. so this will be your 1 comma 1. now again what you have to do, you have to simply join the points. ठीक है? now join it. ठीक है? so this will be your graph for equation 3 equal to 2x plus y, or we can say 2x plus y equal to 3. clear? so this is your first question. now come to second question. it's a good question actually. ठीक है? you can mark it as important. okay, now give the equations of two lines passing through 2 14.
हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। ठीक है, आपको देना है कि 2 लाइन की इक्वेशन देनी है, सॉरी आपको 2 लाइन्स की इक्वेशन देनी है विच पासिस थ्रू 2,14। ठीक है, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। अच्छा, ऐसी कितनी लाइन्स हैं और क्यों हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड 2 इक्वेशंस। ठीक है, आप मान लीजिए लेट x प्लस वाई इक्वल टू के बी सच ए लाइन। देखो आपने मान लिया x प्लस वाई इक्वल टू के कोई लाइन है। अब देखो x प्लस वाई की एक लाइन है, तो एंड वी नो दैट इट इज पासिंग थ्रू 2,14। वो कहाँ से पास हो रही है, 2,14 से। तो इट मीन्स जब हम x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 14 पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x इक्वल टू 2 पुट किया, y इक्वल टू 14 किया, सो दिस विल गिव यू k इक्वल टू 16। ठीक है, तो k इक्वल टू 16 यहाँ पे पुट करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 16, ये आपकी एक रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी विच पासिस थ्रू 2,14। समझ में हमने क्या किया, हमने पहले एज्यूम किया कि x प्लस वाई इक्वल टू के कोई लाइन है। ठीक है, अब x प्लस वाई एक लाइन है जो 2,14 से पास हो रही है, तो 2,14 इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो हमने x इक्वल टू 2 पुट कर दिया, y इक्वल टू 14 पुट कर दिया, तो हमें k की वैल्यू कितनी मिली 16। तो k इक्वल टू 16 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाती है x प्लस वाई इक्वल टू 16। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन होगी, आप एक और फाइंड करनी, उसने 2 इक्वेशंस बोला है ना, तो लेट 2x प्लस 3y इक्वल टू के डैश बी अनदर लाइन थ्रू 2,14। हमने माना 2x प्लस 3y इक्वल टू के डैश एक और लाइन है जो 2,14 से पास हो रही है। अब ये 2,14 से पास हो रही है तो हमें इसमें x की जगह 2 पुट करना है और y की जगह 14। सो 2,2 प्लस 3,14 इक्वल टू के डैश, तो ये 4 प्लस 42 इक्वल टू के डैश। इट इम्प्लाइज आपको के डैश कितना मिला 46। तो 46 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपकी इक्वेशन कितनी होगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 46। इट पासिस थ्रू 2,14। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो ऐसी कितनी लाइन्स हो सकती है, देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स। इनफाइनाइट क्यों हो सकती है, क्योंकि कोई भी एक पॉइंट है उससे पास तो कितनी भी लाइन्स हो सकती है ना। सपोज ये कोई आपका पॉइंट है, क्या कहा, ये आपका 2,14 एक पॉइंट है, तो इससे तो एक लाइन ये पास हो सकती है, एक ही हो सकती है, एक ही हो सकती है, एक ही हो सकती है। तो देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स विच पासिस थ्रू 2,14। ठीक है, तो हम लिखते हैं देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सच लाइन्स एज देर, ऐसी कितनी लाइन्स होगी इनफाइनाइटली, एज थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पढ़िए। इफ अ पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको क्या बोला है, 3,4 इस पे लाई करता है, इसका मतलब 3,4 इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 3,4 लाइज ऑन 3y इक्वल टू ax प्लस 7। इट मीन्स x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में x की जगह 3 पुट कर दो, y की जगह 4 कर दो, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू a, x की जगह 3 प्लस 7, 12 इक्वल टू 3a प्लस 7। सो 3a कितना होगा 12 माइनस 7, सो 3a विल बिकम 5 एंड a विल बिकम 5/3। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से सुनिए। ठीक है, अ टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी फेयर की बात चल रही सिटी में।
फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए तो फेयर होगा ₹8, पहले किलोमीटर के लिए फेयर होगा ₹8 और जो रिमेनिंग किलोमीटर्स होंगे उनके लिए होगा ₹5 पर किलोमीटर। ठीक है, आपको क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड एज x एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, x किलोमीटर है और टोटल फेयर कितना है, y। आपको इसको रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में एंड उसका ग्राफ भी आपको बनाना है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं। ओके, डिस्टेंस कवर्ड कितना है बेटा, x किलोमीटर। ठीक है, अब उस x किलोमीटर में से फर्स्ट किलोमीटर में कितना चार्ज ले रहा है वो, ₹8। ठीक है, पहले किलोमीटर में कितना ले रहा है, ₹8 और बाकी के x किलोमीटर में से एक गया तो कितना बचा, x-1। तो जो x-1 किलोमीटर बचा उसमें चार्ज कितना ले रहा है वो, ₹5 पर किलोमीटर। देखो x किलोमीटर डिस्टेंस है, उसने बोला पहले किलोमीटर के लिए तो ₹8 लेता है और जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा कितना बचा, 1 गया तो x में से x-1 तो उसमें कितना लेता है, ₹5 पर किलोमीटर। ठीक है, अच्छा तो अब हमें टोटल फेयर कितना है आपका y। देखो पहले किलोमीटर के लिए ₹8 लेता है तो हम लिखेंगे 1 × 8 प्लस x-1 किलोमीटर के लिए कितना लेता है वो, 5, ₹5 पर किलोमीटर। तो ये टोटल फेयर कितना देगा आपको y। 1 किलोमीटर के लिए तो लिया उसने ₹8 और जो रिमेनिंग x-1 किलोमीटर हुआ उसके लिए उसने लिया ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 + 5x - 5 = y। तो 5x + 3 = y और वी कैन से दैट y = 5x + 3। ठीक है, अब आप देखिए x = 1 पुट करिए, x = 1 पुट करेंगे तो 5 × 1 5 + 3 y = कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, अब आप x = 2 पुट करिए तो 5 × 2 = 10, 10 + 3 13 तो y = 13। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, when x = 1 y = 8, when x = 2 y = 13। ठीक है, 2 पॉइंट सफिशिएंट है एक ग्राफ को बनाने के लिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ को। ठीक है, तो आपके पॉइंट्स क्या क्या हो गए, 1,8 एंड 2,13। इसको प्लॉट करना है हमें। तो x is 1, y is 8, so this is 1,8 and 2 next is 2,13। तो x is 2 and y is 13। ठीक है, बस अब सिंपली आप हो गया। अब आपको इसको ज्वाइन कर देना है, बस ये आपने ज्वाइन कर दिया। So this will be your equation of line y = 5x + 3। किसकी, y = 5x + 3। ठीक है, क्लियर। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर ए एंड फिगर बी। आपको देखो ये फिगर ए है, ये फिगर बी है, आपको यहाँ पे 4 इक्वेशंस दी गई हैं। आपको इन चारों में से बताना है कौन सी इक्वेशन फिगर 1 को रिप्रेजेंट करती है और इन फिगर बी के लिए भी 4 इक्वेशन दी गई है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सी इक्वेशन फिगर बी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये इसमें हमें सिर्फ क्या करना था, बेसिकली हमें कोई भी इक्वेशन सेलेक्ट कर लो और उसमें देखो आप उसमें वो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए फॉर फिगर ए, ये जो फिगर है इसके लिए सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन x + y = 0। कौन सी, x + y = 0। ऐसा कैसे, तो दिस कैन बी वेरीफाइड बाय पुटिंग, इसके पॉइंट्स कितने हैं, -1, 1, 0, 0,
1, तो कोई सा भी एक पॉइंट इसमें पुट करके देखो, तो वो कोई सा भी तीनों पॉइंट ही एक्चुअली सेटिस्फाई करने चाहिए। तो मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे x=1 एंड y=-1, दिस वन। सो दिस कैन बी वेरीफाइड बाय पुटिंग x=1 y=-1 इन x+y=0। आप तीनों पॉइंट पुट करके देखेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फॉर फिगर बी के लिए। इसके लिए जो सेटिस्फाई करेगा वो है y=-x+2, y=-x+2। ऐसा क्यों? तो हम लिखते हैं दिस कैन बी वेरीफाइड बाय पुटिंग x=-1 एंड y=-3 इन y=-x+2। ये -1, 3 जो पॉइंट है इसको पुट करेंगे आप। 0, 2 को भी पुट करके देखेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, 2, 0 को पुट करेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नोट इट डाउन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। Again, look at this. Read the question first of all. If the work done by a body on an application of constant force is directly proportional to the distance traveled by body. Work done जो है वो किसके proportional है? Distance traveled by the body. Express in the form of linear equation in 2 variables and draw graph of सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट। आपको कितना लेना है? 5 यूनिट्स, ठीक है। और आपको फाइंड करना है कि जब वर्क डन 2 यूनिट्स है, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल, रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन। आपको वर्क डन फाइंड करना है जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स है, और वर्क डन आपको फाइंड करना है जब डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट्स है, ठीक है। तो अब आप स्टार्ट करते हैं। लेट y हम मान लेते हैं वर्क डन। y एक्सिस पे हम क्या मानेंगे? वर्क डन। और F कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट आपको कितना दिया है? 5, ठीक है। और x मानेंगे आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो आपको क्या बोला है? वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो हमने मान लिया एफ आया। कांस्टेंट की वैल्यू आपको कितना गिवन है? 5। तो y कितना होगा? 5x, ठीक है। अगेन आपको पॉइंट्स प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, x एंड y। x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5 × 1 5। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5 × 2 = 10। 3 पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिए। इवन वी कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स ओनली, पर हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। 2 से भी हम बना सकते हैं। तो आपके पॉइंट्स कितने हो गए? 0, 0, 1, 5, 2, 10। अब इनको प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज योर 0, 0। नेक्स्ट इज 1, 5 एंड 2, 10। 1, 5। दिस इज योर 1, 5। नेक्स्ट कितना है? 2, 10। 2 एंड 10। 2, 10, ठीक है। अब इनको सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं हम। ये आपकी लाइन होगी। कौन सी इक्वेशन क्या है? y = 5x, ठीक है। दिस इज योर y = 5x।
अब आपसे कुछ और पूछा है, इसने क्या पूछा है, रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। जब डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट्स है तो कितना वर्क डन है। ठीक है, तो देखो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या माना था डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे क्या था हमारा वर्क डन। तो जब डिस्टेंस 2 है, डिस्टेंस 2 है तो आपको पूछा है कितना वर्क डन है। तो देखो ये डिस्टेंस 2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे आइए लाइन पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से आप उसके करस्पॉन्डिंग वाई देखिए, तो वाई कितना रहा है 10। तो जब आपका डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स है तो आपका वर्क डन कितना है 10 यूनिट्स। सिमिलरली आपका जब डिस्टेंस ट्रेवल 0 है मीन्स डिस्टेंस ओरिजिन पे है तो वाई कोऑर्डिनेट भी कितना है, उसका वर्क डन भी 0 है। देखो उसने पूछा है जब आपका डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स है तो आपका वर्क डन कितना है। तो डिस्टेंस हमने 2 यूनिट्स ट्रेवल किया तो हमने इसको देखा इस ग्राफ को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ से परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पे तो हमारा है 10। तो जब हमारा डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स है तो वर्क डन है 10 यूनिट्स। ठीक है, जब हमारा सेकेंड पार्ट पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0 तो डिस्टेंस ट्रेवल 0 है तो वाई भी मतलब वर्क डन भी कितना है 0 है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं अब फ्रॉम ग्राफ। ठीक है, फ्रॉम ग्राफ व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड is 2 units then work done is कितना है 10 units and when distance traveled is 0 units then डिस्टेंस अगर 0 यूनिट्स है तो वर्क डन इज ऑल्सो 0 यूनिट्स। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर 6th क्वेश्चन। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर 7th क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, यू कैन डू इट ऑन योर ओन, सो आई विल डिस्कस ओनली 8th क्वेश्चन। ठीक है, नाउ रीड द 8th क्वेश्चन। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, कनाडा और यूएसए में ऐसी कंट्रीज में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर होता है, वेर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। इंडिया में मोस्टली सेल्सियस में होता है। तो आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, वो ये है F = 9/5C + 32। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको इसमें 5 पार्ट पूछे गए। तो फर्स्ट पार्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे तो आपको लेना है सेल्सियस और वाई एक्सिस पे लेना है आपको फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आपने इक्वेशन लिखी F = 9/5C + 32। अब वैल्यूज पुट करने, ठीक है, तो वैन C = 0, C = 0 पुट करेंगे तो F कितना आएगा 9/5 × 0 + 32। तो F आ जाएगा आपका 32। ठीक है, जब C और F, जब आपने C 0 पुट किया तो F कितना आया 32। अब आप पुट करिए 10 वैन C = 10 तो F कितना आ जाएगा 9/5 × 10 + 32। ये 9 × 2 = 18, 18 + 32 इज 50। तो F इज 50। When C is 10, F is 50। तो आपके 2 पॉइंट्स क्या है 0,32 एंड 10,50। तो आपको इसको क्या करना है ग्राफ बनाना है 0,32 10,50। ठीक है, तो 0,32 तो 0,32 नेक्स्ट इज 10,50। So this is your 10, this is your 50। बस आपको सिंपली इसको ज्वाइन कर देना है। So that will be your graph for the equation, which equation
एफ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, एफ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो टेम्परेचर सेल्सियस में कितना है 30, आपको किस में फाइंड करना है, फ़ारेनहाइट में। तो आपकी इक्वेशन है एफ इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। टेम्परेचर 30 दिया हुआ है, तो 9/5 इंटू 30 प्लस 32, ये 30 गया 6 टाइम्स, 9 6 54 प्लस 32, दिस विल गिव यू 86। तो फ़ारेनहाइट कितना आ गया, 86। ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और आपको सेल्सियस में फाइंड करना है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, एफ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। फ़ारेनहाइट कितना दिया गया है आपको, 95, तो फ़ारेनहाइट की जगह पुट करी 95 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तो 95 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 9/5 C। 95 माइनस 32 विल बिकम 63 इक्वल टू 9/5 C। ये 9 की टेबल में 7 टाइम्स, तो C कितना हो जाएगा, 7 5 35। ठीक है, तो जब फ़ारेनहाइट 95 होगा तो सेल्सियस कितना होगा, 35 डिग्री। ठीक है, फोर्थ पार्ट है। इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस। उसने बोला है कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और अगर फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। इफ़ हम मानते हैं सेल्सियस में 0 है, इफ़ C इक्वल टू 0, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा बेटा, 9/5, हमें पता है फ़ारेनहाइट कितना है, 9/5 C प्लस 32 होता है, तो C की जगह 0 पुट कर देते हैं हम, इंटू 0 प्लस 32, तो दिस विल गिव यू 32। तो जब सेल्सियस में डिग्री है 0 है तो फ़ारेनहाइट में कितना है, 32। तो आप क्या लिखेंगे, इफ़ C इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस देन फ़ारेनहाइट इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब उसने पूछा है अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस कितना होगा। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है, इफ़ फ़ारेनहाइट इक्वल टू 0 तो सेल्सियस कितना होगा। तो हमें पता है फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना होता है, 9/5 C प्लस 32। फ़ारेनहाइट 0 पुट कर दिया तो 9/5 C प्लस 32, तो ये 9/5 C कितना हो गया, माइनस 32, तो C कितना हो गया, माइनस 32 इंटू 5/9, सो दिस विल गिव यू C इक्वल टू माइनस 17.77। ठीक है, तो आप लिखेंगे व्हेन F इक्वल टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन C इक्वल टू माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ कम टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जहाँ पर वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम होगा, अगर ऐसा है तो फाइंड कीजिए। ठीक है, तो हमें तो पता है F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 होता है। अब हम मान लेते हैं कि F इक्वल टू C मीन्स फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हैं, वो कोई टेम्परेचर होगा। तो F की जगह C की जगह भी हम क्या पुट कर देते हैं, F पुट कर देते हैं। तो F इक्वल टू 9/5 C की जगह F प्लस 32, तो ये बचा F माइनस 9/5 F इक्वल टू 32। F कॉमन लिया, 1 माइनस 9/5 इक्वल टू 32, F इंटू 4/5 इक्वल टू 32, ये 4 की टेबल में गया 8 टाइम्स। ठीक है, तो एक मिनट, F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, तो ये बचा 30, तो ये आपका F आया 8 5 40 डिग्री। ठीक है,
सॉरी ये आएगा 1 माइनस 9/5 है ना, तो दिस विल बिकम -4 एक्चुअली। तो ये टेम्परेचर आपका आएगा -40। तो देखो, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों कब बराबर होंगे, जब वो 40 डिग्री होगा। तो आप क्या लिखेंगे, सो एट -40 डिग्री बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर सेम। ठीक है, तो 40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें ओनली 2 क्वेश्चंस हैं। दे आर वेरी वेरी सिंपल एंड आई होप यू कैन कंप्लीट देम ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू।